Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my sixth lecture on the topic menstruation and menstrual cycle under chapter 3 human reproduction. In our earlier classes we already learned about the process of gametogenesis, means in details about the spermatogenesis, that is the formation of sperm, and also we learn the process of egg formation, that is called the oogenesis. Now today's topic is the menstruation and the menstrual cycle which occurred in human female. So first of all we have to know what is menstruation and what is menstrual cycle. See, menstruation means it also known as the period or the monthly is the process of regular discharge of blood along with the mucosal tissue along with the unfertilized egg from the inner lining of the uterus through the vagina. Means menstruation basically it also known as the period or the monthly. As you know, during menstruation the unfertilized egg along with some mucosal tissue and the inner lining of the uterus, that is the endometrium, is shedding through uterus and read out through vagina is called the menstruation. Okay, now what about the menstrual cycle? Menstrual cycle means it's a cycle which occurs in the human female, is a repeated and average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from the menstruation till the next one is called the menstruation cycle. मतलब एक menstruation हुए होने के बाद से नेक्स्ट menstruation होने तक जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली कितना होता है 28 to 29 डेज का होता है. वो जो गैप है उस गैप को हम लोग कह रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो वंस पर मंथ जनरली होता है. ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर हम लोग को टोटल 4 फेजेस देखने को मिलता है. ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेगा वो होगा द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्या क्या ये जो टोटल जो 28 टू 29 डेज का जो साइकिल होता है, ये साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस होता है, क्या क्या इवेंट होता है, वो सब हम लोग को अभी जानना है. ठीक है ना. सो द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. दैट इज द फेज 1 कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, फेज 2 इज कॉल्ड द proliferative phase or the follicular phase. Phase 3 is called the ovulatory phase and the last one is called the luteal phase. ठीक है ना, proliferative phase. So first the menstrual phase. Menstrual phase में क्या होता है? Menstrual phase basically comprise the shedding of inner layer of uterus, means the endometrium layer. So endometrium layer along with the unfertilized egg and mucosal tissue suddenly discharge through vagina is called the menstrual phase. So this phase lasts for 3 to 5 days. During this phase bleeding occur. Clear? So menstrual phase के दौरान simply क्या हो रहा है, जो endometrium layer बना था उस endometrium layer along with the mucosal tissue, blood vessels, unfertilized egg, ये सब मिलके menstrual phase में रिलीज होता है थ्रू वैजाइना, जो ब्लीडिंग होता है. सो ये जनरली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज. जनरली 3 to 5 डेज होता है. अब ये टाइम वेरी भी कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हो गया मेंस्ट्रुअल फेज. हम लोग यहाँ पे जो साइकिल को कैलकुलेट करने के लिए जाएगा वो डे 1 से लेकर डे 28 तक होगा. ठीक है, सो 29 डे से फिर से स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज. सो अगर 1 से हम लोग काउंट करने से 3 to 5 डे तक होता है मेंस्ट्रुअल फेज. सो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, मतलब ब्लीडिंग हो गया, अनफर्टिलाइज्ड एग, एंडोमेट्रियम लेयर सब कुछ रिलीज हो गया. नेक्स्ट जो होता है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज, जो कि ना 10 से 12 दिन तक स्टे करता है, 10 to 12 डेज. ये फेज के दौरान क्या होता है, ये फेज के दौरान होता है oogenesis. जो प्रोसेस हम लोग पढ़ा था ना, उसमें हम लोग पढ़ा था प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी फॉलिकल,
फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से लेकर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ठीक है ना। तो वो जो इवेंट होता है ना, वो इवेंट को ही हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज या पॉलीफाइटी फेज। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पहले जो होगा हम लोग का प्राइमोडियल, प्राइमोडियल होगा, प्राइमोडियल से होगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से होगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से होगा टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सो ये जो कन्वर्सन है प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे सेकेंडरी, टर्शियरी या ग्राफियन फॉलिकल में जो कन्वर्सन है, ये कन्वर्सन ही होता है फॉलिक्यूलर फेज, जो होने के लिए 10 to 12 डेज लगता है। मतलब आफ्टर कॉम्प्लीटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज नेक्स्ट स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर फेज, जो कि ना फिर से 10 से 12 दिन तक स्टे करता है। ये दौरान जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है जैसे LH, FSH, ये दो जो पिट्यूटरियन हार्मोन होता है, ये दो हार्मोन फाइनली क्या करता है, ये फॉलिक्यूलर चेंजेस में हेल्प करता है। द सेम टाइम जब प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है तब वो फॉलिक्यूलर सेल से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि ओवम को मैचुरेशन की तरफ लेके जाता है, जो कि ना ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये जो पूरा इवेंट होता है, ये इवेंट को हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। अब जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम रेडी हो गया, मैच्योर हो गया, तब जाके स्टार्ट होता है नेक्स्ट फेज, दैट इज द थर्ड फेज व्हिच इज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी फेज। अब ये ओव्यूलेटरी फेज एक्चुअली 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, ठीक है। सो ये टाइम में क्या होता है, ये टाइम में बेसिकली LH, FSH और LH, FSH एंड ईस्ट्रोजन, ये तीन हार्मोन अपना पीक में रहता है। पीक मतलब मैक्सिमम लेवल में सिक्रेशन होता है एट द डे ऑफ 14th। ड्यूरिंग द सिक्रेशन, ड्यूरिंग द हाई लेवल ऑफ सिक्रेशन, और जब ये हाई पीक में पहुंचता है तब जाके क्या होता है, rupture of Graafian follicle and release the ovum from ovary to the fallopian tube। ये होता है ओव्यूलेटरी फेज। सो बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज जो होता है एक दिन का होता है, जिस दिन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम ओवरी से बाहर आके फैलोपियन ट्यूब में डिपॉजिट होता है, वो ही दिन को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब ये फेज जनरली +- 2 डेज हो सकता है, मतलब 14 +- 2 ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली डेट हम लोग कैलकुलेशन के लिए 14th डे को बोल रहे हैं, पर एग्जैक्टली ये क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज +- 2 हम लोग पकड़ लेते हैं 14 डे के हिसाब से, ठीक है। सो जब ओव्यूलेशन हो गया, सो ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो होता है लास्ट फेज वो होता है ल्यूटियल फेज। सो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, देखो ल्यूटियल फेज मैक्सिमम टाइम तक स्टे करता है, वो होता है 12 to 14 डेज। सो मतलब देखो ऑलरेडी 14 डे ऑफ 14 क्या हो गया, ओव्यूलेटरी फेज हो गया। सो 14 के बाद से नेक्स्ट 14 ऐड करो, अल्टीमेटली कितना हो जाता है, 28 डेज आ जाता है, ठीक है ना। सो ये जो 12 to 14 डेज होता है, ये 12 to 14 डेज के अंदर क्या होता है, ल्यूटियल फेज। ये फेज के दौरान क्या हो रहा है, ये फेज के दौरान हो रहा है जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया था, वो ग्राफियन फॉलिकल अभी कन्वर्ट किस में होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम का और एक नाम हम लोगों को क्या पता है, येलो बॉडी। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा, जो कि ना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर मतलब जो यूटेरस का इनर वॉल होता है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। सो वो एंडोमेट्रियम लेयर हर महीना प्रिपेयर होता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। अगर एग फर्टिलाइज हो गया, मतलब ओव्यूलेशन तो 14 डे में हो गया, तो मतलब ओवम अभी कहाँ पे आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा। सो अगर फर्टिलाइज हो जाएगा फिर उसको तो रिसीव करने के लिए तो एक घर चाहिए। सो वो घर कौन बनाता है, वो घर बेसिकली ये एंडोमेट्रियम लेयर बनाता है,
जहाँ पे फिर से उसका जो बात का अप टू पर्चुरेशन तक जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा, वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ये एंडोमेट्रियम लेयर में मतलब यूटेरस के अंदर होता है। सो यूटेरस में अगर मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है, सो यूटेरस में तो एक अच्छा सा घर बनना चाहिए। सो वो घर कौन बना रहा है? वो घर बना रहा है ये एंडोमेट्रियम लेयर। पर ये एंडोमेट्रियम लेयर कैसे बनेगा? जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तब तक ये एंडोमेट्रियम लेयर नहीं बन पाएगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन काम ही होता है कि वो एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग आएगा उसको रिसीव करने के लिए, उसको नरिशमेंट करने के लिए, उसका फर्दर डेवलपमेंट को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टेज होता है इसे कहते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज, जो कि ना अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ना और एक नाम होता है येलो बॉडी। ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बन रहा है? जस्ट आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज, जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है तब टूटा फूटा ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। तब जाके प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन सिक्रेशन फिर से स्टार्ट होता है। हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा क्या क्या इवेंट होता है, उस इवेंट के टाइम हम लोग देखेगा कौन सा जगह में कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन कितना दिन में हो रहा है, सब हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेगा। पर अभी के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा ये टोटल जो 4 फेज होता है, 4 फेज के दौरान क्या होता है। तो देखो, जब ल्यूटियल फेज मान लो इन केस ऑफ नॉट प्रेगनेंसी ऑकर, सो अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, सो ये एंडोमेट्रियम लेयर का कुछ काम नहीं, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग को वो रिसीव करके क्या करेगा। तो जब देखता है कि एट द डे ऑफ 28 डे में जब उसको पता चल गया कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब क्या होगा? वही अनफर्टिलाइज्ड एग एलोंग विद द एंडोमेट्रियम लेयर फिर से शेडिंग होगा फ्रॉम यूटेरस, तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मतलब फिर से क्या स्टार्ट हो गया? फेज 1 फिर से स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि ना 29 डे से फिर से स्टार्ट हो रहा है। सो ये जो साइकिल होता है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता ही रहता है वंस पर मंथ। अब ये जो एग्जैक्ट जो टाइमिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया 28 डेज, 28 डेज किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। पर हम लोगों के लिए ये 28 डेज का साइकिल मान के हम लोग चलता है, जहाँ पे लास्ट जो फेज होता है ल्यूटियल फेज, जो कि ना स्टे करता है 12 टू 14 डेज के लिए। अब ये पूरा इवेंट को हम लोग और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में जानने के लिए हम लोगों को एक ड्राइंग देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो देखो, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फोटो हमने अपलोड किया है, यहाँ पे क्लियरली डे 1 से लेकर डे 28 तक यहाँ पे दिखाया है। सो यहाँ पे देखो, ये जो डे 1 से लेकर 5 तक होता है, जनरली ये हमने जैसे बोला था बहुत सारा बुक में अलग अलग टाइमिंग पीरियड देखने को मिलेगा, पर जनरली हम लोग मान लेते हैं 3 to 5 डेज फॉर द फर्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड द ब्लीडिंग फेज, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किया था टोटल 4 जो फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, ये चारों फेज जो होगा, ये चारों फेज हम लोग को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जनरली यहाँ पे 1 to 7 डेज लिखा है मेंस्ट्रुएशन, हम लोग मान लेते हैं 1 to 5 डेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये हो गया 1 मेंस्ट्रुअल फेज। सो ये दौरान क्या हो रहा है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, क्लियर। ये होने के बाद फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट अप टू 13 डेज तक चलता है, 13 डेज तक अप टू फॉलिक्यूलर फेज चल रहा है। तो ये हो गया 2। सो आफ्टर द एंड ऑफ 13 डेज जो 14 डे होगा, ये जो 14 डे होगा, ये 14 डे में क्या हो रहा है? ये 14 डे में हो रहा है ओव्यूलेशन, क्लियर। सो ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज हो गया। अब एग रिलीज हो गया, कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। तो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद से फिर डे 15 से लेकर अप टू 28 डे तक चल रहा है हम लोग का लास्ट फेज, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो रेड मार्क किया है ना 11 से लेकर 15 तक, ये जो रेड मार्क किया है ये एक्चुअली वेरी करता है। जैसे हम लोग बोला था कि 14 डे ऑफ 14 मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो कि ना होता है ओव्यूलेशनरी फेज, वो ओव्यूलरी फेज वेरी कर सकते हैं, किसी किसी का में पहले भी हो सकता है, किसी किसी का भी बाद में भी हो सकता है। पर ये जो एक्चुअल ओव्यूलेशन का जो टाइम है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? सपोज मान लो किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 34 डेज का, क्लियर। सो 34 डेज का हो रहा है किसी का, और किसी का मान लो 28 डेज का हो रहा है नॉर्मल। जो जिसका 28 डेज हो रहा है उसका तो हम लोग बोल रहे हैं डे ऑफ 14 को ओव्यूलेशन होगा, क्लियर। सो मतलब तुम लोग क्या समझेगा कि मतलब हाफ
28/2 मतलब 14 होता है। सो 14 होता है एग्जैक्टली, मतलब जो साइकिल होता है उस साइकिल का हाफ कर दो, जो डेट आएगा वो होगा ओव्यूलेशन, है ना। पर ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जितना दिन का होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 34 डेज लिखा है, सो 34 डेज से तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, 34 डेज से तुम लोग को 14 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 जो होता है फिक्स किसके लिए, लास्ट जो फेज होता है जिसका नाम होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हमेशा 14 डेज का मैक्सिमम होता है। सो कुछ भी अगर ओव्यूलेटरी फेज एग्जैक्टली डेट अगर हम लोगों को पता करना होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, टोटल डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टोटल है उस साइकिल से 14 को रिड्यूस कर दो। तो 14 को रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा, 20 होगा। सो ये 20 डे जो होगा, ये टाइम में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा किसका होगा, जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 34 का होता है। समझ में आया क्या बोला। सो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 14 डे को हम लोग ओव्यूलेटरी फेज बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट उसका आधा कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसको कैसे करना है, जो टोटल जो डे होगा उस टोटल डे से हम लोग को 14 को माइनस करना है। 14 को माइनस करने के बाद जो डे आएगा वो होगा एग्जैक्ट डेट प्लस माइनस 2 होगा ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन। क्लियर। और एक डायग्राम से हम लोग देखते हैं ना। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पे और भी बढ़िया से डायग्राम दिया हुआ है, क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है। डे साइकिल 1 से लेकर स्टार्ट किया है। सो 1 से लेकर अप टू 7 तक, यहाँ तक हम लोग क्या दिया है, मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है ना। फिर हम लोग 8 से लेकर अप टू 13 तक ये होता है फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। पर इसमें अंदर एक चीज़ लिखा है, जो डे 8 और 9, डे 8 एंड 9 ये जो होता है पॉसिबल टू कॉन्सीव। पॉसिबल टू कॉन्सीव मतलब ये डे में फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। डे 10 से लेकर 13 तक क्या लिखा है, ओवुलेशन द फर्टाइल विंडो, मतलब बेस्ट चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन, मतलब ये टाइम में चांसेस ज़्यादा होगा प्रेगनेंसी का, ठीक है। डे 14 में क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया, मतलब अभी ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ गया। तो डे 15 और डे 16 यहाँ पे भी चांसेस होगा, हाई चांसेस होगा फॉर कॉन्सीव, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि ओवम 24 आवर्स तक लिविंग कंडीशन में रह सकता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर 12 आवर्स होता है हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। मतलब रिलीज होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद विद इन 12 आवर्स चांसेस ज़्यादा होता है फर्टिलाइजेशन का। पर ये एक सो कॉल्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर कितना दिन तक, कितना आवर्स तक रहेगा, 24 आवर्स तक लिविंग कंडीशन में रहेगा। सो विद इन 24 आवर्स अगर कोई स्पर्म पहले से प्रेजेंट है या स्पर्म अगर आ जाता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसीलिए ओव्यूलेशन जिस दिन हो रहा है उसका बाद का दिन बहुत ही क्रूशियल होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 15 एंड 16 को, ये दोनों को हम लोग लिखा है पॉसिबल टू कॉन्सीव, ठीक है। अब ये 16 डेज हो गया, मतलब 14 डेज को ओव्यूलेशन हो गया था, ठीक है। 16 डेज तक मैक्सिमम हम लोग वेट किया, 15 डे के अंदर ही ऑलरेडी ओवम डेड हो जाएगा। सो डेड ओवम अगर हो जाएगा, फर्दर फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं है। तो डे 17 से लेकर अप टू 28 डे तक, ये डे में जनरली क्या होता है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। सो ये टाइम में कोई भी चांस नहीं होता है टू कॉन्सीव, अनलाइकली टू कॉन्सीव। एक्चुअली ये सब चीज़ हम लोग चैप्टर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के टाइम और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए एक क्लियर आइडिया तुम लोगों के पास होना चाहिए कि एक्चुअली ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सा डे में कौन सा इवेंट होता है और इवेंट वो कैसे होता है, ठीक है। ये तो चला गया एक डायग्राम के लिए। यहाँ पे भी देखो और एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, हाउ लॉन्ग डज ओव्यूलेशन लास्ट। यहाँ पे भी देखो 1 to 5 जो दिया है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फिर 6 से लेकर अप टू 13 तक हो गया फॉलिक्यूलर फेज, जहाँ पे मोस्ट फर्टाइल डेज मेंशन किया है, मोस्ट फर्टाइल डेज मेंशन किया है कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेकर 13 तक, ठीक है। और 14 में क्या होता है, ओव्यूलेशन। क्योंकि हम लोग को ये जो मोस्ट फर्टाइल डेज क्यों लिखा है, जबकि तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 14 डे को तो ओव्यूलेशन हो रहा है, सो उससे पहले कैसे मोस्ट फर्टाइल डेज होगा। अब स्पर्म कैन लिव अप टू 72 आवर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। सो अगर मान लो डे ऑफ 12
डे ऑफ 12 के अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म तो प्रेजेंट रहेगा 72 आवर्स तक, तो मतलब 3 दिन तो प्रेजेंट रहेगा। सो 14 डे को जब ओव्यूलेशन होगा तो आराम से एक के साथ स्पर्म फर्टिलाइज हो सकता है। इसीलिए ओव्यूलेशन का 2 दिन या 3 दिन पहले या ओव्यूलेशन का 2 दिन या 3 दिन बाद जो फेजेस होता है वो होता है हाई रिस्केबल जोन, जहाँ पे प्रेगनेंसी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद से ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद मान लेते हैं, उसके बाद से क्या होता है, ओवम डेड हो जाता है। उसके बाद जितना भी चाहे स्पर्म प्रेजेंट क्यों ना हो फैलोपियन ट्यूब में, वो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो ये जो टाइमिंग होता है 17 to 18, ये टाइमिंग को हम लोग बोल रहे हैं कि ल्यूटियल फेज, जिसमें हम लोग 18 से लेकर अप टू 28 डेज तक ये टाइम को हम लोग सेफ जोन मानते हैं। ठीक है ना। सो ये हो गया हम लोग का आज का टोटल क्लास, जहाँ पे हम लोग पढ़ा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या क्या फेजेस होता है। टोटल 4 फेज होता है, 4 फेज को अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे जो भी 3 फोटो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये 3 फोटो को भी अच्छे से समझ लेना कि कौन सा डे में क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस करेगा रिगार्डिंग सम वेरियस इवेंट्स ऑकर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या इवेंट हो रहा है, ये तो था फेज, ये तो 4 फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेगा कि क्या क्या इवेंट हो रहा है, यूट्रस में क्या इवेंट हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या इवेंट हो रहा है। ठीक है, हार्मोनल लेवल का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, कौन सा टाइम में कौन सा हार्मोनल सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।